موجود ہے۔ خدا کے مقدس کلام میں سے مقدس لوکا کی انجیل اور اس کا 10واں باب 19 نمبر آیت کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہاللیلویا۔ خدا کے کلام میں اس طرح لکھا ہے، دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قوت پر غالب آؤ، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا۔ آمین، ہاللیلویا۔ بائبل مقدس میں پلیز بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، دیکھو میں نے تمہیں اختیار بخشا ہے، اختیار دیا ہے کہ کیا کرو، سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور اس کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور تمہیں کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا۔ ہمارے پاس اختیار ہے، آمین، اور ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ آسمان سے، آمین۔ ہمارے پاس جو اختیار ہے وہ آسمانی اختیار ہے، ہاللیلویا۔ کہاں سے ملا ہے؟ آسمان سے۔ کس نے دیا ہے؟ خدا نے۔ دیکھو میں نے تمہیں اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور تمہیں کوئی بھی ضرر نہیں پہنچے گا۔ میرا خیال ہے ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ خدا ہم سے کہتا ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، اور جو کچھ خدا ہم سے بولتا ہے ہم وہ ہیں، آمین، ہاللیلویا۔ اگر خدا بولتا ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے تو ہمیں مان جانا چاہیے کہ میرے پاس اختیار ہے، آمین۔ اور اگر خدا کہتا ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے اور تم غالب آنے کے لیے یہ اختیار تمہیں دیا گیا ہے، تو پھر ہمیں غالب آنا چاہیے، آمین، ہاللیلویا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا کا پہلا قتل جب ہونے والا تھا، دنیا کا پہلا قتل جب ہونے والا تھا تو خدا نے اس شخص سے کہا کہ تو شیطان پر غالب آ، تو گناہ پر غالب آ، لیکن وہ غالب نہیں آیا۔ آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا پہلا قتل ایک بھائی نے کیا تھا، ایک بھائی کا، ایک بھائی نے اپنے سگے بھائی کا پہلا قتل کیا، دنیا کا پہلا قتل، اور خدا نے اسے کہا تھا کہ تو غالب آ، لیکن وہ غالب کیسے آ سکتا تھا؟ اس کے لیے مشکل تھا۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ اس پر غالب تھا، کیونکہ گناہ اس کے اندر تھا، ابلیس اس پر غالب تھا، اس لیے اس کو گناہ پر غالب آنا، اس کو دشمن پر غالب آنا، شیطان پر غالب آنا اس کے لیے انتہائی مشکل تھا۔ ناممکن نہیں تھا لیکن مشکل تھا، وہ غالب نہیں آ سکتا تھا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم غالب آئے، آمین، ہاللیلویا۔ کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں دنیا پر غالب آیا، آمین۔ یسوع مسیح نے کہا میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں شیطان پر غالب آیا ہوں، اس کی قدرت پر غالب آیا ہوں، اور وہی اختیار میں تمہیں دیتا ہوں، آمین۔ ہمارے پاس جو اختیار ہے یہ زمین اور آسمان کا اختیار ہے۔ بہت دفعہ ہم دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے، اس لیے ہماری زندگی کے اندر کوئی بھی ترقی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یسوع مسیح نے کہا دیکھو میں نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ۔ ہمارے پاس غالب آنے کے لیے
हमें इख्तियार दिया गया है। आमीन। हमें गालिब आने के लिए क्या दिया गया है? इख्तियार दिया गया है। हम इब्लीस की तमाम तर कुदरत पर गालिब हैं। आमीन। आपको कभी भी घबराना नहीं चाहिए अगर कोई बदरू गिरफ्तार शख्स आपके सामने खड़ा हो। आमीन। क्योंकि आपके पास क्या है? इख्तियार है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको उस बदरू को निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है। बहुत दफा आप घबरा जाते हैं, आपको उस बदरू को निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। जस्ट यीशु के नाम से उसे कहें इस बदन से निकल जाए। हाँ, कुछ भी नहीं करना है। आपके पास इख्तियार है, वो आपके इख्तियार को मानेगा। इब्लीस जाएगा, इब्लीस थरथराएगा, इब्लीस भागेगा जब भी आप बोलेंगे उस इख्तियार के साथ। और अगर इस इख्तियार को समझ जाए कि आपके पास वो इख्तियार है, तो आप दुनिया पर बादशाही करने वाले हैं। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें दुनिया के ऊपर बादशाह बनाया है। हमारे पास इख्तियार जमीन और आसमान का है। हालेलुया। जमीन और आसमान का इख्तियार। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ जमीन पर खोलोगे आसमान पर खुलेगा। जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे बाप से मांगोगे वो सब तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। वो सब तुम्हारे लिए हो जाएगा। फिर हम कितना हम बांध रहे हैं और कितना हम खोल रहे हैं और किस कदर हम इख्तियार यूज कर रहे हैं और किस कदर हम दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं, हमें से कोई भी ऐसा नहीं कर रहा। सोचें, आपके पास इख्तियार है कि आप दुनिया के ऊपर बादशाह बनाकर भेज दिए गए हैं। आमीन। यीशु मसीह ने जो पहला जुमला बोला था वो ये था कि पहले तुम बादशाही को और रास्तबाजी को तलाश करो। बादशाही को लो। क्या लो? बादशाही। क्या आपके पास बादशाही है? हाँ, यीशु ने कहा था पहले बादशाही लो। तो बादशाही है आपके पास? मेरी तरफ देखें, क्या आपके पास बादशाही है? बादशाही का मतलब इख्तियार होना। इख्तियार, हुक्म चलाने वाला। हम क्या हैं? हुक्म चलाने वाले। आमीन। हम हुक्म देने वाले हैं, हुक्म चलाने वाले हैं, हुक्म बोलने वाले हैं। और जो कुछ आप जमीन पर रहते हुए बोलोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। लेकिन फिर भी हम चूंकि बोलते ही नहीं है और होता नहीं है। जब बोलेंगे तो होगा। हमारे पास अथॉरिटी है, हमारे पास इख्तियार है। आप दुनिया के ऊपर हाकिम बनाकर भेजे गए हो। आमीन। दुनिया के ऊपर हुकूमत करने के लिए। और सिर्फ एक मुल्क के ऊपर नहीं, 2 मुल्क के ऊपर नहीं, 4 ममालिक के ऊपर नहीं है, सारी दुनिया के ऊपर। आमीन। सारी दुनिया के ऊपर आप हुक्मरान हैं, सारी दुनिया के ऊपर। हालेलुया। क्या आपको कोई खुशी नहीं हो रही कि आप दुनिया के ऊपर हुक्मरान हैं? हाँ? लेकिन चूंकि हम इस हुकूमत को, हम इस इख्तियार को यूटिलाइज नहीं कर रहे, इस इख्तियार को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, इस इख्तियार को हम ले नहीं रहे। अगर हम इस इख्तियार को लें और इस्तेमाल करें, याद रखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको इख्तियार के साथ हुक्म देना है। आमीन। कि या आप हुक्मरान, कोई आपके ऊपर हुक्मरान हो, ये आपको पसंद है? कि आप किसी के गुलाम रहे, ये पसंद है? आप किसी का नौकर रहे, ये पसंद है? या आपको ये पसंद है कि आप हाकिम बने? आमीन। और आपको हाकिम बनने के लिए कुछ भी नहीं करना है, ना वोटिंग करनी पड़ेगी, ना पैसे लगाने पड़ेंगे, ना इश्तिहार देने पड़ेंगे। जस्ट आपको उस इख्तियार को अपने अंदर लेना है। आमीन। जस्ट उस इख्तियार को अपने अंदर लेना है। और जैसे ही आप उस इख्तियार को अपने अंदर लेते हैं और ईमान रखते हैं कि मेरे पास इख्तियार है, आमीन, तो फिर आप बादलों को रोक सकते हैं। हालेलुया। फिर आप सूरज को रोक सकते हैं। आमीन। फिर आप पानियों को 2 हिस्से कर सकते हैं। आमीन। फिर आप कह सकते हैं कि ये रोटियां जो थोड़ी हैं ज्यादा हो जाए। जस्ट आपको बोलना है। आमीन। जस्ट आपको बोलना है, तो आपके बोलने से ये मौजज़ात होंगे, अजीब काम होंगे। सिर्फ आपको अपने इख्तियार को समझना है। और जब तक आप अपने इख्तियार को नहीं समझेंगे, कभी भी आप हुकूमत नहीं करेंगे। और यीशु मसीह ने खास तौर पर जो हमें हुक्मरान बनाया है, क्योंकि जमीन पर किसकी हुकूमत थी? किसकी? जमीन पर किसकी हुकूमत थी? शैतान की।
जमीन पर शैतान की हुकूमत थी, इब्लीस की हुकूमत थी। उसने सारी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उसने सारी दुनिया को अपने अपने चुंगल में ले लिया था। उसने सारी दुनिया को अपना गुलाम बना लिया था। ऐसा है या नहीं? बाइबल ऐसा बोल रही है। इब्लीस ने सारी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, यहां तक कि नबी भी, सुनिए, यहां तक कि नबी भी, शायद ये लफ्ज आपको हजम ना हो, लेकिन नबी भी, आप देखते हैं मुकद्दस नूह को देखें, मुकद्दस दाऊद को देखें, आप अब्राहम को देखें, आप किसी भी नबी को देखें, किसी भी नबी को गिरफ्त में लिया और उनसे गलतियां हुई, उनसे गलतियां करवाएं, उनसे गुनाह करवाए या नहीं करवाए, क्योंकि वो इब्लीस के झांसे में थे, वो इब्लीस की गिरफ्त में। सारी दुनिया पर उसकी हुकूमत थी, मगर यीशु मसीह आए और उसने उसको कुचल दिया। आमीन, हालेलुया। और फिर हुकूमत किसके हवाले कर दी? तुम करो। अब यीशु मसीह ने हमारे हवाले हुकूमत की ताकि हम जमीन पर हुक्मरान हों। आमीन। लेकिन आपने कभी भी इस दिमाग के अंदर ये नहीं सोचा होगा कि मैं दुनिया के ऊपर हाकम हूं, मैं बादशाह बनाकर भेजा गया, मैं बादशाह हूं, मैं इसलिए जमीन पर आया हूं ताकि जमीन पर क्या करूं? बादशाही करूं। लेकिन फिर भी हम किसी नौकरी की तलाश में रहते हैं। आप हाकम हैं, लेकिन फिर भी आप किसी के नौकर बनना चाहते हैं। आप हाकम हैं, लेकिन फिर भी आप किसी की गुलामी करना चाहते हैं। आप हाकम हैं, पर फिर भी आप कोई दिहाड़ी करना चाहते हैं, छोटे मोटे काम करना चाहते हैं। आप क्यों हुकूमत नहीं करते? आप क्यों हुकूमत नहीं कर रहे? आप क्यों ये करना नहीं चाहते? क्योंकि आपका ज़हन अभी तक आजाद नहीं है। आपका ज़हन अभी तक आजाद नहीं है, क्योंकि ज़हन आजाद करने के लिए आपको यीशु के खून की जरूरत है और वो आप अपने ऊपर लेते नहीं है। ज़हन आजाद करने के लिए रूहुल कुद्स की जरूरत है। आमीन। रूहुल कुद्स को अपने ज़हन पर मांगे ताकि आपके ज़हन आजाद हों। यीशु के लहू को अपने ज़हनों पर मांगे ताकि आपके ज़हन आजाद हों, और जब आपके ज़हन आजाद होंगे तो फिर आपको होश आएगा, जैसे कि मुशर्रफ को होश आया। मुशर्रफ को उस वक्त होश आया जब वो दुनिया के कामों से तंग आ गया, जब वो उस नौकरी से तंग आ गया, जब वो उस नापाक खाने से तंग आ गया। तो वो तो तंग आ गया और हम इसी के साथ जीना चाह रहे हैं और इसी के साथ हमने कंप्रोमाइज कर लिया है। हमने दुनिया के साथ जीने का कंप्रोमाइज कर लिया है। हमने दुखों के साथ जीने का कंप्रोमाइज कर लिया है। हमने गुर्बत के साथ जीने का कंप्रोमाइज कर लिया है। हमने गुलामी के साथ जीने का कंप्रोमाइज कर लिया है। हमने नौकर रहने का कंप्रोमाइज कर लिया है कि मैं इसी तरह सारी जिंदगी गुजारूंगा। लेकिन खुदा ने हमें हाकम बनाया और हमें इख्तियार बख्शा कि हम दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आए। हालेलुया। हम गालिब हैं यीशु मसीह के नाम से। और फिर मैं आपको तरीका बताना चाहता हूं कि हम कैसे गालिब आ सकते हैं। कैसे गालिब आ सकते हैं? अगर आप अब तक गालिब नहीं है तो फिर तरीका क्या है? नंबर 1, नई पैदाइश से। आमीन। नई पैदाइश से। जब आप नए सिरे से पैदा होते हैं तो आप खुदा से पैदा होते हैं और खुदा के फर्जंद, किसी के गुलाम नहीं होते। आमीन, हालेलुया। आप नई पैदाइश से, जब आप नए सिरे से पैदा होते हैं तो आप खुदा के फर्जंद बनते हैं और आप इख्तियार रखते हैं, आप खुदा के फर्जंद बनते हैं। नई पैदाइश से आप दुश्मन पर गालिब आते हैं। आमीन। फिर हम कैसे गालिब आते हैं? ईमान के साथ। अगर यूहन्ना का खत पढ़ें तो ईमान के साथ हम दुश्मन शैतान पर गालिब आते हैं। नई पैदाइश से, ईमान के साथ, और फिर हम नेकी के जरिया से। यीशु मसीह ने नेकी के जरिया से वो दुश्मन शैतान पर गालिब आया। यीशु ने क्या नेकी की थी? उसकी एक ही नेकी से क्या हो गया? दुश्मन नेस्त हुआ। उसकी एक ही नेकी से दुश्मन कुचला गया। उसकी एक ही नेकी से
जो सारी दुनिया मौत में थी वो सब जिंदा हो गया एक नेकी से, और एक के गुनाह से सारी दुनिया मर गई, मौत में चली गई, और एक की नेकी के जरिया से सारी दुनिया मौत से बाहर आ गई। उसने एक नेकी की और वो नेकी सारी दुनिया के लिए की, और वो नेकी ये थी कि उसने अपने आप को दे दिया। आमीन, हालेलुया। यीशु की एक नेकी से सारी दुनिया मौत से छूट गई। यीशु की एक नेकी के जरिया से सारी दुनिया इब्लीस के शिकंजे से आजाद हो गई। यीशु मसीह की एक नेकी के जरिया से सारी दुनिया गुनाह से आजाद हो गई। अगर ये चीजें आप अपने जहन में, अपने माइंड में रखते हैं कि मैं आजाद हूं क्योंकि यीशु ने मेरे लिए अपना खून बहाया है, यीशु ने मेरे लिए सलीब पर जान दी है, यीशु ने अपने रूहुल कुद्स को मेरे लिए भेज दिया है, तो फिर आप दुश्मन शैतान पर गालिब हैं। आमीन, हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि गालिब आनों के लिए, आने वालों के लिए कुछ इनामात हैं। अगर मुकाशफा की किताब पढ़ें तो दूसरे बाब की 7वीं आयत में लिखा है, जो गालिब आए, हालांकि आपके पास इख्तियार है, बहुत से लोगों के पास क्या है, इख्तियार है, वो समझते हैं इख्तियार को, लेकिन फिर भी चूंकि वो इस्तेमाल नहीं करते उस इख्तियार को, और दुश्मन पर गालिब नहीं आते। अगर वो उस इख्तियार को इस्तेमाल करें तो फिर दुश्मन पर गालिब आएंगे। आमीन। और जो गालिब आएंगे उनके लिए इनामात हैं। नंबर 1, जो गालिब आए मैं उसे जिंदगी के दरख्त से फल खाने को दूंगा। आमीन। और आपको पता है वो जिंदगी का दरख्त बाग एदन के अंदर लगाया गया था। अगर आदम उसका फल खाए और दूसरे का ना खाए तो हमेशा जिंदा रहे। और उस फल के खाने से जो जिंदगी का दरख्त है, सुनिए, आप कभी भी मौत में नहीं जाएंगे। आमीन। वो जिंदगी का फल खाने को आपको खुदा देगा, और उसके बाद फिर कभी भी मौत आप पर नहीं आएगी। नंबर 2, जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से कुछ नुकसान ना होगा। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से कुछ नुकसान ना होगा। दूसरी मौत से मुराद आग और गंधक की झील है। वो शख्स जो गालिब आएगा वो आग और गंधक की झील में कभी नहीं जाएगा। जो गालिब आएगा। अब खुदा चाहता है कि हम दुश्मन शैतान और उसकी कुव्वतों पर गालिब रहें। आमीन। और गालिब आप एक ही सूरत में रह सकते हैं, जो इख्तियार खुदा ने आपको दिया है उसको इस्तेमाल करके। तो फिर आपको कभी भी किसी भी जगह घबराना नहीं चाहिए कि अगर ये बदरू इस शख्स के अंदर है तब मैं क्या करूं, किसी पादरी को बुलाओ। नहीं, आपके पास इख्तियार है। आमीन। आप उसको डांटे, वो जाएगी। आमीन। और फिर शक ना करें, जो कुछ आपने बोल दिया है, आमीन, जो आपने बोल दिया है उस पर शक ना करें। आपने बोला है मैं यीशु मसीह के नाम से तुझे हुक्म देता हूं कि यहाँ से निकल जा, इस बदन से निकल जा, और वो जाएगी। आप उस पर गालिब रहेंगे। अगर बीमारी होगी तो बीमारी भी जाएगी। आमीन। बीमारी भी जाएगी। अगर कमजोरी होगी तो कमजोरी भी जाएगी। अगर दर्द होगा तो दर्द भी जाएगा। अगर कुबड़ापन होगा तो ईमान के साथ कहें वो भी कुबड़ापन भी जाएगा। अगर आंखों की खराबी है तो आंखें ठीक हो जाएंगी। अगर आंखें दुरुस्त नहीं है ठीक होंगी। हाँ, कोई भी बीमारी, कोई भी लाचारी, कोई भी कमजोरी, कोई भी बदरू, कोई भी इब्लीस, कोई भी शैतान, कोई भी जादू, जो कुछ आप बोलेंगे, जस्ट आपने बोलना और ईमान रखना है। बोलने के बाद आपने डावाडोल नहीं होना, बोलने के बाद शक में नहीं आना। सिर्फ आपने यीशु के नाम से बोलना है और फिर पीछे ईमान रखना है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप ईमान के साथ शक ना करें, ईमान रखें और मुर्दे को कहेंगे वो उठेगा। आमीन, हालेलुया। मुर्दा उठेगा यीशु मसीह के नाम से। लेकिन आपने जो कहा है उस पे शक नहीं करना कि ये उठेगा या नहीं उठेगा, या आप उसके पीछे इस तरह की सोच के साथ ना कहें अगर ये ना उठा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी ना, तो फिर तो आप कहें ही नहीं, फिर आप कहेंगे भी नहीं।
लेकिन आपको ये पूरा इत्काद होना चाहिए, क्योंकि मैंने ये कहा है और मेरे पास इख्तियार है, और यीशु ने कहा है कि तुम मुर्दों को जिंदा करो। यीशु ने कहा या नहीं? यीशु ने कहा मुर्दों को जिंदा करो, यीशु ने कहा बीमारों को अच्छा करो, यीशु ने कहा कोड़ियों को पाक साफ करो, यीशु ने कहा लोगों को खुशखबरी दो। यीशु ने ये सारा इख्तियार हमें दिया है, जमीन पर बांधने का भी और आसमान पर बांधने का भी। आपको यकीन होना चाहिए कि यीशु ने कहा है कि जो कुछ जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंध जाएगा। तो फिर आपने अगर बांधा है जमीन पर तो फिर आसमान पर बंधा हुआ है। आपको शक नहीं करना चाहिए और आपके लिए वो होगा। आमीन, हालेलुया। और फिर देखिए लिखा है जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से खाने को दूंगा, यानी वो खाना जिसके बारे में अभी तक किसी ने सुना नहीं है वो क्या है। यीशु कहता है वो खाना मैं पोशीदा मन, पोशीदा खाना उसे दूंगा। और फिर यीशु कहता है मैं एक सफेद पत्थर दूंगा जिस पर उसका नाम लिखा हुआ। आमीन। और पत्थर पर लिखा हुआ नाम मिटता नहीं है। आमीन। क्योंकि पत्थर को जंग नहीं लगता और पत्थर घिसता नहीं है। पत्थर पर जो लिखा जाता है वो कायम रहता है। यीशु कहता है मैं आपका नाम एक सफेद पत्थर पर लिख दूंगा। हालेलुया। ओ रेमासा को लीजिया। फिर लिखा है जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करे। जो गालिब आए, तो गालिब आना कैसे है? इख्तियार के साथ। आमीन। वो इख्तियार आप में से हर किसी के पास है। हमारे अंदर एक सोच डाल दी गई है, सुने, ये बहुत ही गलत सोच डाली गई है, गौर से सुने। हमारे अंदर एक सोच डाली गई है कि ये सिर्फ पादरियों का काम है। अक्सर मैं यही बोलता हूं, कलीसिया के अंदर ये सोच डाली गई है कि कलाम सुनाना पादरी का काम है, गीत गाना पादरी का काम है, साज बजाना पादरी का काम है। ये गलत सोच है। ये किसी ने जिसने भी डाली है, ये गलत सोच डाली है। यीशु ने अपने पैरोकारों से कहा था, यीशु ने अपने फॉलोअर्स से कहा था जाओ और सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो। वहां कोई पादरी नहीं था, क्या था? वहां तो कोई पादरी नहीं था। और वो 70 जो गए थे वो भी पादरी नहीं थे, और वो जो 12 गए थे वो भी पादरी नहीं थे, और वो जो 120 गए थे उनमें से कोई पादरी नहीं था। आप किसका वेट कर रहे हैं? यू हैव अथॉरिटी, यू हैव अ पावर। जीसस ने आपको दे दिया अथॉरिटी, जीसस ने आपको पावर दे दिया, लेकिन आज भी हम सोए हुए हैं। हमारा काम क्या है? हमारा काम शादी करना, बच्चे पैदा करना, उनको पालना, उनको बड़े करना, और फिर उनकी शादियां करना, और फिर हम मर जाना। हाँ, ये हमारा टोटल काम है। ये हमारा काम, टोटल काम है, यही है ना? यही कर रहे हैं ना? पर यीशु ने हमें कुछ और करने को बोला है, और ये भी सब कुछ आप करेंगे क्योंकि उसने जमीन पर हमें भेजा है। आमीन। हम जमीन पर भेजे गए हैं, ये भी हम करेंगे, लेकिन जो असल काम है कि आप बादशाही करें। आमीन। क्या बादशाहों की औलाद नहीं होती? बादशाहों की शादियां नहीं होती? बादशाहों के बच्चे नहीं होते? बादशाहों के बच्चे जवान नहीं होते? क्या वो उनकी शादियां नहीं करते? आप ये सब कुछ करेंगे, आपको ये करना है, लेकिन जो पहला काम आपका बादशाही करना है। आमीन। आप क्यों इस चीज के अंदर फंसे हुए हैं कि मेरा काम तो यही है बस, और घर चलाना, घर चलाना, घर चलाना। इससे हम बाहर नहीं, इस दायरे से हम बाहर नहीं जा रहे, इस दायरे से हम निकल नहीं रहे। जिस दिन आप इस दायरे से निकल आओगे, याद रखो, लोग आपको ढूंढेंगे। आमीन। लोग आपको तलाश करेंगे, लोग आपको ढूंढेंगे। आप कहां पर हैं? लोग आपके पीछे होंगे, क्योंकि आप जिंदगी रखते हैं, आप इख्तियार रखते हैं। आमीन, हालेलुया। फिर लिखा है दूसरे बाब की 26वीं आयत में लिखा है जो गालिब आए उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी। आमीन। सफेद पोशाक पहनाई जाएगी और मैं उसका नाम किताबे हयात से हरगिज ना काटूंगा। आमीन। हमारा नाम किताबे हयात के अंदर लिखा हुआ है। सुनिए, आप में से हर एक का, जो यीशु के फॉलोअर्स हैं, यीशु के पीछे हैं, आप में से हर एक का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ है। मगर यीशु कहता है कि अगर तू गालिब नहीं आएगा तो फिर मैं नाम काट दूंगा। लिखा हुआ है सबका। आमीन। सबका लिखा हुआ है। पर अगर तू गालिब नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको इख्तियार दिया था गालिब आने के बाद, अगर हम इस इख्तियार को यूज नहीं करेंगे हमारा नाम कटेगा। सुनिए, तो फिर हमें क्या करना चाहिए?
एक ही हल है, हम इस इख्तियार को यूज करें, हम इस इख्तियार को इस्तेमाल करें। अगर हम इस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम गालिब नहीं आएंगे, और अगर हम गालिब नहीं आएंगे तो फिर हमारा नाम काटा जाएगा। अगर हम गालिब आएंगे तो फिर खुदावंद हमारा नाम नहीं काटेगा। हालेलुया। वो हमारा नाम किताब याद से हरगिज ना काटेगा अगर हम गालिब आएंगे। और फिर मुकाशवा 6 बाब की तीसरी आयत, तीसरे बाब की 12वीं आयत में लिखा है, जो गालिब आए मैं उसे अपने खुदा के मक़दस में, ये बहुत वर्ष मुझे पसंद है, जो गालिब आए मैं उसे अपने खुदा के मक़दस में एक सतून बनाऊंगा। हालेलुया। मक़दस के अंदर एक पिलर बनाऊंगा, एक सतून बनाऊंगा। कहां? मक़दस के अंदर। मक़दस मीन खुदा के घर के अंदर उसे एक सतून बनाऊंगा। और अगर सतून निकाल दिया जाए तो बिल्डिंग कायम नहीं रहती। इसका मतलब है जिसको सतून बना दिया जाएगा तो वो कभी भी घर से निकाला नहीं जाएगा। आमीन। जिस तरह आप पिलर देते हैं, अगर पिलर को निकालेंगे तो घर गिर जाएगा। लिहाजा खुदा आपको ऐसा मकाम देगा कि वो अपने घर के अंदर, मक़दस के अंदर एक सतून की तरह खड़ा करेगा, और कभी भी जैसे सतून घर से निकाला नहीं जाता इस तरह आपको भी कायम करेगा, कभी भी आपको घर से निकालेगा नहीं। वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने खुदा का नाम, मैं अपने खुदा का नाम और नए यरूशलेम का नाम और अपना नाम उस सतून के ऊपर लिखूंगा। हालेलुया। खुदा का नाम, यरूशलेम का नाम और अपना नाम उस सतून पर, उस ईमानदार पर लिखूंगा। यानी कि ये उसको नाम दिए जाएंगे, उसके ऊपर निशान दिए जाएंगे, नाम दिए जाएंगे। हालेलुया। और मकाशवा 21:7 में लिखा है, जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा। जितनी भी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं, जितनी भी चीजों के बारे में हमने बताया है, लिखा है जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। हालेलुया। मैं उसका खुदा हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। नेक्स्ट गौर से सुनिए, नेक्स्ट जो बात लिखी गई है, जो गालिब ना आए उनका अंजाम क्या है। जो गालिब ना आए उनका अंजाम, मुकाशवा 21 बाब की 8वीं आयत में लिखा है, मगर बुज़दिलों, क्योंकि उन्होंने इख्तियार को इस्तेमाल ना किया, मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। यही दूसरी मौत है। आग और गंधक से जलने वाली झील, यही दूसरी मौत है, और यही जहन्नम है, और यही दोज़ख है। खुदा कहता है मैं उसमें उसको डाल दूंगा जो गालिब नहीं आएंगे। तो आपके पास क्या है? इख्तियार है, जमीनों आसमान का इख्तियार। चूंकि हम ये कलाम सुनते ही चले आ रहे हैं, जब से हम पैदा हुए हैं, जब से पैदा हुए हम इस तरह का कलाम सुनते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, और सुन सुनकर हम पर इसका कोई असर नहीं है, कोई भी नहीं, क्योंकि हमने इसे अपने अंदर नहीं लिया, इस इख्तियार को अपने अंदर नहीं लिया। और आज इस इख्तियार को अंदर लें, आजमा कर देखें, इस इख्तियार को लें और आजमाएं। आप खुदा की हुजूरी में बोलें। कोई भी मुश्किल आपके सामने आती है, आज से इस नोट कर लें। अगर आपके सामने कोई मुश्किल आती है, इस इख्तियार को यूज करें। आपके बेटे के पेट में दर्द है, आप इस इख्तियार को यूज करें। आपके घर में गुर्बत है, आप इस इख्तियार को यूज करें। इख्तियार को, गुर्बत नहीं रहेगी, गुर्बत जाएगी। आमीन। आपकी बीमारी है, गुर्बत आपकी बीमारी है, आप इस इख्तियार को यूज करें। किसी खादम की तरफ ना देखें। मैं अक्सर ये कहता हूं, किसी खादम की तरफ ना देखें। यू हैव अथॉरिटी, आपके पास इख्तियार है, लेकिन खादम को छोड़े नहीं। खादम की तरफ देखें नहीं, लेकिन खादम को छोड़े नहीं।
ان کے پاس جائیں وہ تعلیم دیتے ہیں, چرچز میں جائیں وہ تعلیم دیتے ہیں, اکٹھے ہوں وہ تعلیم دیتے ہیں, وہ سکھاتے ہیں, لیکن وہ سکھاتے اس لیے ہیں کہ آپ اس کو یوز کریں, اختیار کو استعمال کریں. اب یہ نہ کہنا کہ پاسٹر نے کہا پادری کی ضرورت نہیں ہے, نہیں, پاسٹر کی ضرورت ہے, خادموں کی ضرورت ہے, آپ ان سے سیکھیں اور پھر اس اختیار کو یوٹیلائز کریں. آمین, ہیلیلویا. اور جب بھی آپ اس کو یوٹیلائز کریں گے آپ 100% نتائج پائیں گے. آمین, ہیلیلویا. آئے ہم پریئر کریں گے, سب کھڑے ہو جائیں اور 5 کے گروپ میں فضل گروپ ہو جائے.